Hello friends, I am Dr. Padma Taneja and welcome back to my channel Maths Expert Tutorial. आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स, इट्स इंट्रोडक्शन, इट्स सुप्रीमा इनफीमा एंड बाउंडेड अनबाउंडेड सेट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आए और जिनसे प्राचीन मानव ने गिनती सीखी, जो कि स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक। इसके सेट को हम डिनोट करते हैं n से। इसके बाद जब जीरो एग्जिस्टेंस में आया तो जीरो और नेचुरल नंबर ने मिलके होल नंबर का सेट को जनरेट किया। इसको हम डिनोट करते हैं w से। फिर जब नेगेटिव नंबर एग्जिस्टेंस में आए तो नेगेटिव नंबर और होल नंबर्स ने मिलके सेट ऑफ इंटीजर्स को डिराइव किया, जिसको हम डिनोट करते हैं z से। तो ये होते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट। रियल लाइन पर हम इनको शो कर सकते हैं 0, 1, 2, 3। तो ये नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स और 1 टू इनफाइनाइट, फिर 0 से इनफाइनाइट तक कहलाते हैं होल नंबर्स और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये कहलाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इनके बाद जो नंबर्स हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबर्स को कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, इसके सेट को हम q से डिनोट करते हैं, जहां पर p में बी belongs to whole numbers but q must belongs to natural numbers. It means q should not be equal to 0 because we cannot divide any number by 0. So set of rational numbers can be denoted by p upon q. अब इसके बाद अब अगर हमें किसी यूनिट स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करना हो, दिस साइड इज 1, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका डायगोनल फाइंड करेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2। बट हाउ कैन वी शो इट ऑन नंबर लाइन? इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1.4142। सो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर not rational, not natural. So these type of numbers are irrational numbers. As for example, pi is also an irrational number whose value is 3.145 dash dash dash. So these kind of numbers which are not rationals are said to be irrational numbers. These are denoted by QC. The numbers which are not rational are said to be irrational numbers. There are two kinds of irrational numbers. One is if we have 1 upon 3, then its value becomes equal to 0.333. So we know that next number is 3, so we can put a bar on 3, and these are recurring decimals. But if we have √2, then its value is 1.41421. We don't know what is the next number. So these kind of numbers are said to be non-recurring decimals. Recurring means repeating decimals, and these are non-recurring decimals. We don't know which the next number is. So these both comes under the kind of irrational numbers. So now we can define real numbers as union of rational and irrational numbers, because all natural numbers, whole numbers, integers
come under the type of natural numbers, whole numbers, integers, all are rational numbers and rest which are not rationals are said to be irrational. तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो इस रियल लाइन पर आते हैं, सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स यूनियन होके बनाते हैं रियल नंबर्स. We can write real numbers as union of rational and irrational numbers. तो सारे नंबर जो इस x एक्सिस पर आते हैं या रियल लाइन पर आते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर सुप्रीमम एंड इनफीमम. वी नो व्हाट इज मीन बाय अ सेट. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. तो इफ वी हैव अ सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, it is denoted by 2, 4, 6, 8, 10. So in the set, if we have a number, suppose we have a number b from which all numbers are less. For all a belongs to given set E. If we find a numbers from which all numbers are less, then it is said to be upper bound. Here 10 is upper bound of this set. But if we write on this number line 2, 4, 6, 8, 10, we have 12 also from which all numbers are less. So 14 also from which all numbers are less. So these all are upper bound because 8 is less than 10 as well as less than 12. 8 अगर 10 से छोटा है तो वो 12 से भी छोटा है, 14 से भी छोटा है. तो ये सारे इसके क्या हो गए अपर बाउंड्स. इन सब बाउंड्स में जो सबसे छोटा होगा लोएस्ट अपर बाउंड, सारे अपर बाउंड हैं 10, 12, 14, 16. तो इन सब बाउंड्स में जो सबसे छोटा होगा वो हमारा होगा लोएस्ट अपर बाउंड एंड दैट इज सेड टू बी सुप्रीमम. तो इस सेट का सुप्रीमम हो गया 10. अब इनफीमम के लिए अगर हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है, इफ वी हैव अ नंबर सपोज a from which all numbers are greater, all numbers s belongs to E, all numbers are greater than this element, then it is said to be lower bound. So in this set 2 is the lower bound, but सारे numbers 2 से बड़े हैं लेकिन 0 भी है, -2 भी है, -4 भी है. तो इन सब से भी ये सारे नंबर बड़े हैं तो ये सारे लोअर बाउंड हो गए. लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा है that is said to be greatest lower bound. These does not belong to set but these are lower bounds. So इन सेट में जो सबसे बड़ा है वो कहलाएगा greatest lower bound या infimum. So इस सेट का infimum हो गया 2. तो अब इस सेट का infimum मतलब greatest lower bound is 2 and lowest upper bound that is supremum is 10 और infimum is 2. अब इन्हीं सुप्रीमम इनफीमम से हमारी डेफिनेशन आएगी बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट की. अगर एक सेट ऐसा है जिसमें इनफीमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करते हैं, both exist in the set, then the set is said to be bounded set. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था E सारे इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 2, 4, 6, 8, 10. तो इसका सुप्रीमम भी इसी सेट में है और इनफीमम भी इसी सेट में है. तो ये कहलाएगा बाउंडेड सेट. अगर हमारे पास इनफीमम ना हो या सुप्रीमम ना हो या इनफीमम हो सुप्रीमम ना हो, सुप्रीमम हो या इनफीमम ना हो, तो उस सेट को हम कहेंगे अनबाउंडेड सेट. जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, तो इसका
इनफीमम है 1, लेकिन सुप्रीमम हम नहीं जानते क्योंकि वो इनफाइनाइट है, तो सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस टाइप के सेट को हम कहेंगे अनबाउंडेड सेट। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर, these all are unbounded set. But if we have any finite set which has infimum and supremum both, that is said to be bounded set. तो अगर किसी सेट में इनफीमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम बाउंडेड सेट कहते हैं। लेकिन अगर किसी सेट में इनफीमम है, सुप्रीमम नहीं है, या सुप्रीमम है इनफीमम नहीं है, जैसे अगर हम निगेटिव इंटीजर्स का सेट ले लें z माइनस, तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। तो -1 इसका हो गया सुप्रीमम क्योंकि सारे नंबर्स इससे छोटे हैं, लेकिन इसका इनफीमम डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी होगा अनबाउंडेड सेट। तो आज के लेक्चर में हमने देखा रियल नंबर्स, सुप्रीमम, इनफीमम, बाउंडेड, अनबाउंडेड सेट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेबरहुड। थैंक यू।